A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. And you know very well, in the last few videos, we already discussed the few of the important topic related to the first chapter of class 12th accountancy, that is an financial statement of not-for-profit organization. In this chapter, we discuss a lots of the theoretical as well as the numerical questions by which we can easily understand how not-for-profit organization prepares its income and expenditure account and balance sheet. So without creating a delay, let's we discuss the first topic of today's video, which already discussed in the last video, that is a balance sheet of not-for-profit organization, and you can see that on your screen. It is a format of the balance sheet of NPO. If you are talking about the balance sheet of the not-for-profit organization, so you can see that in the there are basically two sides of the balance sheet, in the liability side as well as in the asset side. In the liability side, we write down the capital fund, add its surplus, deducted deficit, and added to life membership fees. Apart from this, we write down the specific fund in the liability side, specific donation in the liability side, endowment fund in the liability side, legacies and entrance fees in the liability side of the balance sheet. Whereas in the asset side, we write down firstly the cash and bank balance. Thereafter, we write down the fixed assets, and the depreciation on fixed asset will be deducted from it. General fund investment, specific fund investment, prepaid salary, outstanding subscription will be write down in the asset side of the balance sheet of the NPO. And apart from this, that is an advance subscription, आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी राइट डाउन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. इसके अलावा और कुछ और भी आइटम्स होते हैं, जैसे कि एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया और आपका आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, विच विल बी राइट डाउन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ओके, सो let's we discuss about the few of the important numerical questions related to the first chapter of this subject. So firstly, discuss in today's video, that is in short answer type practical questions, which given in this question in the page number 1.71, that is in short answer question. तो उसको हम लोग पहले कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है. So the first question, which are related to the short answer type question, और इसमें कई टॉपिक्स के क्वेश्चन आपके बुक में गिवन है. And the first question is question number 10. The question number 10 of this topic: what amount will be credited to income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 on the basis of the following information? And the opening outstanding is given, closing outstanding is given, and subscription received during the year is 18-19 is given. So it is a very simple question, because you know very well, according to this question, we can see that subscription received during the year is rupees 1,80,000, और उसमें हम लोग ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड और माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग. सो आउटस्टैंडिंग एट ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग माइनस करेंगे. सो आउटस्टैंडिंग एट एंड इज 18,000, whereas outstanding at beginning is 15,000, so value is 1,83,000, and this value will be shown in the income and expenditure account के credit side में इसको हम show करें. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट आंसर में आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो उस पर भी हमें वर्कआउट करने की जरूरत है. ओके, नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. ये भी कुछ लोगों ने पूछा है मुझसे. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 is how much amount will be recorded in income and expenditure account if club has 400 members, each paying an annual subscription of 1,000
and outstanding subscription on 31st March 2019 were 2000. तो सिंपल सा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पता होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है, उसमें बेसिकली आप आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हो तो आपका आ जाता है आंसर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कितना करना है। तो उस क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर 400 मेंबर, 400 मेंबर है और हर मेंबर आपको 400 दे रहा है, यानी करंट ईयर की आपकी इनकम मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा आपको इनकम हो ही नहीं सकती क्योंकि उतने मेंबर 100 रुपए देना है तो मैक्सिमम आपको 40,000 रुपए इनकम होगी एंड इट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड आउटस्टैंडिंग एट एंड इज 2000। तो अगर आपसे कोई बोले कि सब्सक्रिप्शन इस साल का कितना मिला है 38,000, बट क्वेश्चन में यहाँ क्लियरली पूछा था हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सो द राइट आंसर इज 40,000 बिकॉज देयर आर 400 मेंबर, हर मेंबर आपको 100 रुपीज दे रहे हैं, सो मैक्सिमम 40,000 रुपीज आपको मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन और है जिसको हम लोगों ने कुछ वीडियोस से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है वो, ठीक है। तो ऐसे ही आप 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या था? द क्वेश्चन नंबर 18 सेज दैट salary paid by Lions Club for the year ended 31st March 2019 amounting to 1,80,000. How much amount will be recorded in income and expenditure account if outstanding salary as on 31st March 2018 was 10,000 and outstanding salary on 31st March 2019 was 6,000? क्वेश्चन में कह रहा है कितना अमाउंट ऑफ सैलरी का पेड कर रहे हो 1,80,000 और कितना अमाउंट आप रिकॉर्ड करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर आउटस्टैंडिंग इज गिवन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने सैलरी पे कितना किया, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, आपने ड्यूरिंग द ईयर सैलरी पे किया 180, और उसके अलावा अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो उसमें लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एट एंड इज गिवन, उसको आप क्या करते हो ऐड, और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग उसको आप लोग क्या करते हो माइनस। सो आउटस्टैंडिंग एट एंड विल बी 6,000 एंड आउटस्टैंडिंग एट एंड विल बी 6,000 एंड आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग इज 10,000। सो ये हो गया आपका 176,000 and this value will be shown in the debit side of income and expenditure account. तो इस सब के क्वेश्चंस को पहले तो अच्छे से नोट डाउन कर लो और उसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। See that we have to find out the amount debited to the income and expenditure account of Good Health Hospital. Okay, and the year is 31st March for the year ended 31st March 2018 and the information are given as follows. अब इसमें सबसे पहले दिया हुआ है स्टॉक ऑफ मेडिसिन as opening 1,75,750 and in the closing 144,650 and the opening creditors is 15,06,900 and the closing creditors is 18,20,700 and medicine purchased during the year is 31st March 2018 was 60,80,700। तो हम इसको कैसे शो करेंगे? सबसे पहले आप डेबिट साइड में यू नो वेरी वेल कि डेबिट में आप एक्सपेंडिचर शो करते हो और क्रेडिट में इनकम। तो इन द डेबिट साइड आप शो करोगे टू मेडिसिन कंज्यूम। अब आपके ऊपर है, आप चाहो तो यहीं पे वर्किंग कर लो या फिर अलग से नीचे वर्किंग नोट में आप क्या करो वर्किंग्स को अलग से शो करो। तो मैंने क्या किया वर्किंग नोट को नीचे शो किया। तो इन द वर्किंग नोट
क्या करना पड़ेगा हमें इन द वर्किंग नोट में हमें इन द वर्किंग नोट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आप देखो तो परचेज इज नॉट गिवन बट पेमेंट गिवन है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया हम लोगों ने 60,80,700 और उसमें हम लोग ऐड करेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे, पहले ऐड करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स पहले ऐड करेंगे और माइनस करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स। मैं आपको एक वे दे रहा हूं जिस हेल्प से आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सो क्लोजिंग क्रेडिटर्स विल बी 18,20,700 जिसे ऐड करना है, और ओपनिंग है 15,06,900, इसको आप माइनस करोगे। और इसमें एडवांस तो है नहीं ना, ओपनिंग बिगनिंग का एडवांस है ना एंड का एडवांस है। तो अब ऐसा नहीं कि इसके पीछे पड़ जाओगे कि दिया नहीं है, क्वेश्चन गलत है, ये है वो है। फॉर दिस पर्पस आप क्या करोगे, सीधे सीधे जो ऐड और लेस करके आंसर आएगा उसे आप लिख दोगे परचेज ऑफ मेडिसिन। उसके बाद आप ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन और माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज 1,75,750 और माइनस में है 144,650 एंड क्लोजिंग मटेरियल स्टॉक। और ये जो आंसर आएगा इट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द गुड हेल्थ लिमिटेड। देखा आपने किस तरह से सॉल्व करते हैं, कितने इजी क्वेश्चंस हैं। उसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, adjustments of outstanding and prepaid expenses. Okay, and the question is very clearly given. क्वेश्चन इसको पहले समझने के लिए मैं क्वेश्चन ड्रॉप करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और उसमें लिखा है सैलरी, पेमेंट साइड में लिखा है बाई सैलरी, और सैलरी की एक साल की नहीं बेसिकली 3 साल की इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर में 16-17 की सैलरी पे की, 17-18 की सैलरी पे की, 17-18-19 की सैलरी। और जो हमने रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया वो कब बनाया है, 31 मार्च 2018 को बनाया है। तो आपने सैलरी आपकी कितनी है, आपने करेंट ईयर में प्रीवियस ईयर की सैलरी कितनी पे की 20,000, करेंट ईयर की सैलरी कितनी पे की 2,80,000, और एडवांस ईयर की कितनी सैलरी पे की 18,000। मतलब आपने करेंट ईयर में इसी साल की नहीं 3 साल की सैलरी पे की, उसमें कुछ पैसा करेंट ईयर का है, कुछ प्रीवियस ईयर का, कुछ उसके अलावा भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या है तो उसको भी देख लो पहले। इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले दिया हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग on 31st March 2017 is 25,000. Salary outstanding on 31st March 2018 is 45,000. और तीसरा दिया है एडवांस सैलरी on 31st March 2017 is 10,000. ये 3 इंफॉर्मेशन गिवन है इन द एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द आउटसाइड ऑफ द क्वेश्चन। अब हम लोग इसको कैसे शो करेंगे इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन में बहुत ही क्लियरली लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सोनिक क्लब एंड विद द हेल्प ऑफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
ओके, सो पहले बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कब का एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं? 31 मार्च 2018, करंट ईयर का ही बनाएंगे। तो आपको पता है सैलरी हम किस साइड शो करते हैं? इन द डेबिट साइड टू सैलरी। अब सैलरी टोटल हमने कितना पे किया? टोटल पे किया 280, 20 प्लस 18, टोटल इतना पे किया। लेकिन हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ कौन सा एक्सपेंस दिखाना है? ओनली विच आर रिलेटेड टू द करेंट ईयर, यानी पार्ट ऑफ द टोटल सैलरी विच आर रिलेटेड टू द करेंट ईयर। तो सिर्फ हम इसमें कितना लेंगे? 2,80,000। अब इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड। अब आप खुद देखो, बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था? 25, मिला कितना है? 20। यानी कि जो आपने सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया है 31 मार्च 2018 को 45, इसमें क्या है? 40,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा और 5,000 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। ये मैं बार बार समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखा है ना, लिखा है एज एट ऑन, यानी जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो 31 मार्च 2018 को कितनी? 25,000। अगर सिर्फ लिखा होता सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड, तो सिर्फ वो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग। बट इस 45,000 रुपए में करंट ईयर का 40,000 है, प्रीवियस ईयर का 45। क्यों? क्योंकि शुरू में था 25,000 बकाया, मिला है 20,000 रुपए, तो अभी 5,000 रुपए बाकी है। और इस 45,000 में 5,000 रुपए प्रीवियस ईयर का है, तो करंट ईयर का कितना होगा? 40। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3,20,000। तो आपको सैलरी डेबिट में कितना दिखाना है? 3। और उसके अलावा आपने एडवांस सैलरी भी दिया है, कितना? 10,000। तो आपको पता है ये, सॉरी फॉर दैट, आउटस्टैंडिंग एट एंड हो गया, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग तो आपने काउंट ही नहीं किया है, और एडवांस कितना पे किया है आपने? 10,000। तो उसको आप लोग क्या करोगे? प्लस करोगे। एडवांस एट बिगिनिंग कितना है? 10,000। तो ये हो जाएगा 3,30,000। यानी इसमें आपने आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड काउंट ही नहीं किया, इसलिए यहां पर उसको हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया। लेकिन आपने आउटस्टैंडिंग एंड काउंट किया है, सिर्फ उसका 40,000 लिया है जो करंट ईयर से रिलेटेड है, और जो एडवांस सैलरी है प्रीवियस ईयर में आपको इस ईयर का मिल गया था, दैट इज 10,000। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको पता ही है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें इस सबसे मतलब नहीं होता है कि इस साल की बैलेंस शीट तो सिर्फ इस साल का आउटस्टैंडिंग और इसी साल का एडवांस दिखाएंगे, नहीं। हमें जब भी दिखाएंगे बैलेंस शीट कब बनाना है? एट एंड। जब 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट बनाएंगे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिखाएंगे? टोटल दिखाएंगे 45,000, जिसमें प्रीवियस ईयर यानी 2017-18 का कितना होगा? 2016-17 का कितना होगा? 40,000, सॉरी 5,000, और 2,000 करंट ईयर मतलब 2017-18 का कितना होगा? 40,000। टोटल कितना होगा? 40,000। और प्रीपेड सैलरी या एडवांस सैलरी आपने कितना पे किया है? 80,000। नेक्स्ट ईयर से ये होगा। सो यू कैन सी दैट how we will show the adjustments of outstanding and prepaid expense in the books of the NPO. और apart from this, अगर आपको इसी क्वेश्चन में कहे कि you have to prepare the balance sheet of the previous year, आपको previous year की balance sheet बनानी है, 31 मार्च 2017 previous year की balance sheet बनानी है। तो सिचुएशन में आपको तो पता ही है क्या करते हैं हम लोग? जो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग सैलरी उसी को बस शो करेंगे, और बिगिनिंग का प्रीपेड। तो आपने 3 चीजें यहां बनाई, बिगिनिंग की बैलेंस शीट, बिगिनिंग करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, और करंट ईयर की बैलेंस शीट। ओके, सो प्लीज नोट डाउन this solution in your copy properly. Let's discuss the questions related to the
adjustment of outstanding and prepaid expenses, and this is in question number 20 of your book. ठीक है, ये क्वेश्चन रिलेट करता है आपका एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, या जिसे हम एडवांस कहते हैं, एक्सपेंसेस। ऑलरेडी हम लोगों ने इसको इस टॉपिक्स पे क्वेश्चन सॉल्व भी किए हुए हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया है 20, सैलरी पेड इन कैश अमाउंटेड टू 40,000, ascertain the amount chargeable to income and expenditure account for the year ending 31st March 2021 from the following additional information. So you can see that हमने सैलरी कितना पे किया है, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर सैलरी पे किया हमने 40,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी एट बिगिनिंग, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन, उसको माइनस करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट इन, उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्रीपेड सैलरी एट बिगिनिंग एंड प्रीपेड सैलरी एट एंड, इसमें अपोजिट होता है, बिगिनिंग को ऐड करते हैं, एंड को माइनस करते हैं। ठीक, एंड द वैल्यू इज गिवन, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज बिगिनिंग इज 3,000, एंड इज 4,500, प्रीपेड सैलरी एट बिगिनिंग इज 1,800 एंड एट एंड इज 1,400। अब आप इसको सॉल्व करोगे, सो 40,000 में 4,500 में 1,800 प्लस करना है, यानी 40,000 में आपको प्लस करना है 6,300 प्लस करना है, तो ये आ जाएगा आपका, और माइनस कितना करना है 4,400, 41,900। ओके, सो दिस वैल्यू विल बी टेकन एज एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होगा, आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विच आर रिलेटेड टू द कंज्यूमेबल गुड्स। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बेसिकली, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, question number 25, okay, and this question is related to the material consumed, consumable goods जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द फॉलोइंग केस, एंड द इंफॉर्मेशन इज गिवन, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी परचेज 34,000, क्रेडिटर्स बिगनिंग का 3,000, एंड का क्रेडिटर्स से 4,200, ओपनिंग की स्टेशनरी 2,500, एंड की स्टेशनरी 2,800। सो पहले हम नोट डाउन करेंगे अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, हमने कितना पे किया स्टेशनरी के लिए, वी हैव टू पे द 34,000 फॉर स्टेशनरी, वो नोट डाउन किया, क्योंकि स्टेशनरी क्या है आपकी, कंज्यूमेबल गुड्स है। उसके बाद नेक्स्ट गिवन है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, तो क्रेडिटर्स एट बिगनिंग माइनस होगा, क्रेडिटर्स एट एंड क्या होगा आपका प्लस होगा। उसके अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जब आप क्रेडिटर्स को ओपनिंग में करोगे तो ये आ जाएगा परचेज ऑफ स्टेशनरी,
तो क्रेडिटर्स बिगनिंग का कितना है आपका 3000, एंड का 4200। तो परचेस कितना आ जाएगा 4400 ग्रेटर है 35200। फिर इसमें आपको पता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऐड करेंगे और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज 2500, क्लोजिंग इज 2800। ठीक है, तो बेसिकली हमें 300 क्या करना है माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 34,900। यस, द राइट आंसर इज 34,900। यह आ जाएगा कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, और इसको कहां दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जामिनेशन में काफी हेल्प करेंगे। आइए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, 26 ये सब पूरे उसी पे बेस्ड हैं। एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर सैंपल पेपर में, दैट इज एन एडवांस पेमेंट टू द क्रेडिटर्स ऑफ द स्टेशनरी। तो उस तरह के क्वेश्चंस पे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक क्वेश्चन और करा लेता हूँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, वो भी बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है इसमें सिंपल सा, अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 20,000, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगनिंग का कितना है 3,300, क्लोजिंग का है 2,900, एंड क्रेडिटर्स फॉर द बिगनिंग इज 5,000 एंड क्लोजिंग इज 4,000। सो व्हाट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आप ऐड लेस करके निकाल लेना। ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपके होमवर्क्स ये हैं कि आपको पूरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या करने हैं सॉल्व कर देने। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन जैसे कि फॉलोइंग आइटम्स को हम लोग कहाँ कहाँ शो करेंगे, यानी अगर हम लोग बात करें कुछ आइटम्स की तो उन आइटम्स को हम लोग कहाँ कहाँ शो करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है आइटम्स मैं बताऊंगा और आपको बताना है कि इसका रिकॉर्डेशन कहां पर होगा। नेम एन आइटम, गिव द नेम ऑफ सच अकाउंट और स्टेटमेंट वेयर फॉलोइंग आइटम विल बी रिकॉर्डेड। सो आपको बताना है कि इसको हम लोग रिकॉर्ड कहां करेंगे। पहला दिया हुआ है इसमें लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो जब एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को बेसिकली हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, पता है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दूसरा डेप्रिशिएशन सेम एज इट इज कहां शो करते हैं डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा इसमें पूछा हुआ है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी ये कहां शो करते हैं, तो पता है इट विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ व्हाट बैलेंस शीट। या फिर आप चाहो तो लाइफ मेंबरशिप को कैपिटल फंड में ऐड कर देते हो। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। जैसे इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, फ्रॉम द गिवन स्टेट ऑब्टेन फ्रॉम द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट सिनेमा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एरियर। तो उसमें सिंपल सा क्वेश्चन था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज गिवन, 130 मेंबर है, हर मेंबर को 1000 मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन बिगनिंग का दिया है 16,000 और 10 मेंबर पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 18 एंड 19। ये क्वेश्चन सीबीएसई 20 कोलकाता एंड लखनऊ में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन पहले आप लोग सॉल्व करना। तो मैंने कई सारे आपको होमवर्क दे दिए। एक आपको मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चंस के जो 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर 64, 62 और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन के
क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर जो मैंने करा दिया उसको छोड़ के क्वेश्चन नंबर 29 तक। तो ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना। पहले आप ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लो और देख लो किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। So I hope today we cleared all the things and all the important questions very easily. Thank you. Take care. Bye bye.